Yes, children, here I am going to explain a cell theory. What is cell theory? Cell theory here that is given by two scientists. The one is Schilden and the another one is Schwann. That is German botanist M.J. Schilden. German botanist that is M.J. Schilden. M.J. Schilden and zoologist. One zoologist is here, that is T. Schwann. That is T. Schwann proposed the cell theory. First they observe in one thing in plant cell and the another one in animal cells. Here they gave first point कि all living organism are made up of cells. All living organisms are made up of cells. Second point, according to the define, the cell is the structural and functional unit of living thing. According to the Schwann, he suggests that the all cells is a structural and functional unit of living thing. Afterwards, the one scientist came, that is Virchow. Afterward, there is one scientist is there, Virchow. Virchow gave a new point, that is all cells come from the pre-existing cells. It's mean, have you heard that question कि egg पहले आया या hen? So like that, always time the cell arise from the one egg. One cell is there, then afterward arise two cells, like that it will be the division is going on. Okay, so that is the main 3 points about the cell theory. Yes, children, here the cell theory, it is written or explained in by my handwritten also. The cell theory was represented by Schilden and Schwann, that I told you. They are the two scientists. They research first, he searched on the plant and he searched on the animal, and they both combined their points and they gave here. The cell theory was further expanded by Virchow. One more scientist is here, that is Virchow scientist. The 3 points of the cell theory, that is also known as modern cell theory. That is also known as modern cell theory. Beta cell theory 3 points are here, that is all living organism are made up of cell. That I explained you already. The all living organism are made up of cell. Next point suggests that the cell is the fundamental unit of life. Cell is the fundamental unit of life. How can you explain that? Fundamental unit of life means they work as a structural or functional. Structural and functional unit of life. And the third one, the new cell arises from pre-existing cells. ये बात जो थी लास्ट वाली कि the new cell, कोई भी नया सेल कोई भी पहले की pre-existing cell से ही arise होता है. That line, that last point, that is given by Virchow. That the last point that was given by Virchow. Afterwards, students that observe these things and they justify the 3 points are here. Again, I am going to revise. The living organism made up of cell, the structural and functional unit of life, and the third one, the new cell arise from the pre-existing cell. Yes, next topic, that is the shape and size of the cell. Beta, in different types of organism, the cell varies in shape and size. Hope so. Here is one picture. By this picture, you can observe different types of shapes they are having. See, this is muscle cells. These are fat cells, bone cells, and one is stem cell is also here. That is nervous cell. That is epithelial, means the upper membrane of the cells. That is immune cells, and that is sex cells are here. So these cells have different shape and their size, and their function is also totally different. According to the shape, various shapes are observed. Most of the plant and animal cells have a definite shape. Some cells are elliptical, some cells are oval, some cells are elongated. Elongated means लंबा होता है. Some are spindle shaped. Okay, some are branched, some are cuboidal, some are biconcave disc shaped. So different types of cells are available here. By this slide or by this picture, I want to show something, and one more slide is here. Here also see the different types of cells again here. The one is nervous cell, that is elongated one. The another one, that is intestinal, that is present in our intestine.
The next one, RBC cells are here, that is red blood cells. Ovum, in class 8 we have done, my dear, that is egg cells, that is present in the female. That is sperm cell, sperm, it is motile, and that is the first time found by the Anton Leeuwenhoek also. Here that is bone cells is there, and that is WBC white cells are here. Okay, so these are here, just kindly go through that. If we will see the normal cell, in microscope, so what we will see here, the outermost, that is plasma membrane और सेल मेम्ब्रेन. बेटा कोई सी भी टिपिकल आप यूकैरियोटिक सेल देखोगे तो उसके अंदर हमें 3 मेन कंपोनेंट्स नज़र आते हैं. दैट इज़ वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द अनदर वन दैट इज जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज साइटोप्लाज्म, and third one that is a nucleus. That 3 things are here that is capable to perform functions, different functions. These things we will discuss deeply in the next videos. So by this activity, this thing, cytoplasm, cell membrane or nucleus, that I tried to explain with the help of one activity. There is a perform little bit, I don't know कि it is up to the mark or what, but I tried to explain this thing. The one thing is here, I took the tub is here, that work as a cell membrane. Inside the ball is here, that work as a nucleus, and the water is behave as a cytoplasm, and few object I put here that is float, so that is known as cell organelles. Yes children, now here I am going to express by something कि what is the shape of exactly cell. Beta, this is a tub. Okay, that tub, it react as the cell membrane. Inside this spherical part, that is known as nucleus, and this water, this jelly like substance, that is known as cytoplasm. Here this comb is going to represent as a mitochondria. The shape is like that only, so I tried to show like that. Here this is a Golgi apparatus, here this is lysosomes, this is a endoplasmic reticulum. Beta, in endoplasmic reticulum you have seen this type of grooves are here, so I tried to like that, and few vacuoles are also there. So this type of structure, we will see if we will see the cell. So mainly 3 things we will observe while we will see in under microscope. One is the plasma membrane or cell membrane, another one is nucleus, and this jelly like substance that is known as cytoplasm. हाँ बेटा, I told you 3 things mainly observe. The one is cell membrane, the another one is cytoplasm, and the third one is nucleus. बेटा here we are going to discuss about the plasma membrane. अब होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आई टोल्ड यू, जैसे एक बाहर सेल है, इसकी बाहर की आउटर कवरिंग, दैट आउटर कवरिंग इट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बेटा देखो, ये सपोज 2 सेल्स आर हियर, तो इसका कंटेंट इसमें नहीं जा सकता और इसका कंटेंट बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता. तो दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प फॉर दैट. इट विल नॉट ट्रांसफर this component here and this component here, allow or permit the entry and exist of some material in and out of the cell. They will allow, अंदर जाने की परमिशन जब मिलेगी जब इसको अच्छा लगेगा, और बाहर आने की परमिशन भी जब मिलेगी जब इसको अच्छा लगेगा. That's why this membrane is known as selectively permeable membrane. That membrane is known as selectively permeable membrane. Okay बेटा, अब ये जो membrane होती है that is flexible due to the engulf of food. ये flexible क्यों होती है? कुछ ऑर्गेनिज्म में ये membrane को अंदर लेने का काम करती है. Okay, this plasma membrane is present on both animal as well as in plant cells. ये दोनों में present होती है. Plasma membrane is present on both plant cell or as well as animal cell. बेटा ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है. लिविंग स्ट्रक्चर मीन्स इफ इट इज डैमेज, सो इट गिव राइज टू द अगेन न्यू सेल. ओके,
नेक्स्ट फंक्शन, इट गिव शेप टू द सेल. यदि सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो ये शेप कैसा होता सेल का, सोचो आप, बाहर निकल रहा होता इसका साइटोप्लाज्म. एंड इट प्रोटेक्ट इज द इंटरनल कंपोनेंट ऑल्सो. ये बाहर के इंटरनल इन्वायरमेंट से इसको, इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट को बचा के रखती है बाहर वाले कंपोनेंट से. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन एंड लिपिड. ये किसकी बनी होती है बेटा, प्रोटीन और लिपिड. इसका जो स्ट्रक्चर था, दैट प्लाज्मा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन और सजेस्टेड बाय निकोलसन सिंगर. दो साइंटिस्ट थे, एस.जे. सिंगर और जी. निकोलसन. इन्होंने 1972 में इसको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. फ्लूइड मोज़ैक model. That model I will explain with the help of next slide. Yes children, here I am going to show that diagram by this slide only. See बेटा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये बाहर की आउटलाइन ऐसे पूरी बनाएगा. ठीक है, एक्चुअली आई टुक ओनली स्मॉल पीस. अब आप देखो बीच बीच में आपको ये पीस दिख रहा है, ये पीस दिख रहा है, ये पीस दिख रहा है, ये पीस दिख रहा है. दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन. और ये जो आपको ये और ये दिख रहे हैं ना, ये जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, दिस वन, दिस डिफरेंट, नीचे की एक सिंगल लेयर, ऊपर की इतनी सारी, दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड. दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड. बेटा हियर दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड. देखो बेटा, ऊपर भी लिपिड, नीचे भी लिपिड. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाई लेयर. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाई लेयर. ठीक है बेटा, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट. अब आप यहाँ देखो बेटा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन यू विल विजिबल. वन इज इनसाइड वन एंड वन इज आउटसाइड वन. जो आउटसाइड वाले प्रोटीन हैं, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. What we call extrinsic प्रोटीन. और जो अंदर वाले हैं, दैट इज़ नोन एज इंट्रेंसिक प्रोटीन. दैट इज़ नोन एज इंट्रेंसिक प्रोटीन. ठीक है बेटा, सुपरफिशियली, एक्सट्रेंसली मीन्स बाहर की तरफ जो दिख रहे हैं, दैट इज सुपरफिशियली, बाहर की तरफ जो दिख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन. और ये जो इंट्रेंसिक प्रोटीन है, ये आपके लिपिड की लेयर के दोनों के बीच में प्रेजेंट है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंट्रेंसिक लिपिड. अब यहाँ लिपिड जो है, द प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. कि क्या देते हैं बेटा, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. दिस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो बेटा, ऐसा लगता है जैसे ये लिपिड की लेयर है, आइस है, ये पानी है जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग की तरह से फ्लोट कर रहे हैं. क्यों बोलते हैं इसको लिक्विड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, बिकॉज इट लुक अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग. प्रोटीन आइसबर्ग का नाम दिया है, दैट फ्लोट इन द सी, जो पानी के अंदर तैर रहे हैं. ओके, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. Hope so. Am I clear this thing? Now come to the function. Here, the function of plasma membrane. Number 1, individuality of cell is maintained by plasma membrane. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखती है. इंडिविजुअलिटी मतलब सिंगल. इट प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल, दैट आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी. इट प्रोजेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी. कोई भी इंजरीज होती है उससे भी उसको बचाती है. ठीक है, हियर द इनर सेल मटीरियल और आउटसाइड मटीरियल, दैट चैनल इज हियर, इट विल अलाउ टू मूव एंड इनसाइड. बेटा, दिस परमिबल membrane is allow of entry and exist because it is selectively permeable membrane. Okay, these functions I told you already before. Cell membrane allow movement of materials, that I know. I told you the cell membrane enter or exit the substance. The substance move through plasma membrane by 2 processes. Beta, in your book there are 2 type of processes given. One is diffusion and the another one is osmosis. But mainly this movement
is known as active transportation or passive transportation. Active transportation or passive transportation. Here I am going to explain diffusion and osmosis. But diffusion or osmosis, the same process is here. मतलब इसके अंदर सब्सटेंस मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. ऑस्मोसिस में भी यही होता है, बट ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू द वाटर. Osmosis is related to the water, but diffusion mainly for gases and as well as liquid also. Gases as well as in liquid also. आपने देखा होगा जब आप घर पे कभी एंटर करते हो और मम्मा ने कुछ अच्छा सा बना रखा होता है तो नाइस फ्रेगनेंस आती है और आप बोलते हो मम्मा यू प्रिपेयर समथिंग गुड. हाउ? जो खाने की स्मेल थी दैट इज मिक्सड इन टू द एनवायरमेंट एंड इट रीचेस टू योर नोज. That process is known as diffusion. That process is known as diffusion. That process is known as diffusion. Now next thing, one more example I want to give. I told you in outside environment so much oxygen is there, but in our body oxygen level is less. So what we are doing? We are receiving oxygen from the environment. हम environment से oxygen लेते हैं. So that process is also known as diffusion. ठीक है. While we are coming in the category of osmosis, in case of osmosis, movement of water from a region of high concentration to the low concentration, but the case is applicable for the semi permeable membrane. इसके लिए कंडीशन एप्लीकेबल होती है बेटा कि इसके मेम्ब्रेन होनी चाहिए, इसके पास में मेम्ब्रेन होनी चाहिए. आई विल शो यू टुमारो, आई विल शो यू द वन प्रैक्टिकल दैट इज दैट रेजिन. हैव यू नो रेजिन एवरीवन? किशमिश. यस, किशमिश को यदि आपने पानी में डाला, या आपने देखा होगा मम्मा जब खीर में डालती है तो वो स्वेल अप हो जाती है. इसका मतलब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर था, ज़्यादा था, और उस किशमिश में कम था, तो द शुगर मूव इनसाइड. द सेम केस इन वाटर कंसनट्रेशन ऑल्सो. आपने देखा होगा वो किशमिश पहले सूखी हुई होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो वो स्वेल अप हो जाती है. सेम केस योर मम्मा इज़ यूजिंग एलमंड. एलमंड मीन्स बादाम. आपने देखा होगा मम्मा बादाम आपको जब भिगो के देती है तो वो पहले श्रिंक से होते हैं, जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फूल अप जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस इट मे ऑफ टू टाइप. एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है एक्स ऑस्मोसिस. एंड ऑस्मोसिस नाम से ही पता चल रहा है अंदर, मतलब सॉल्यूशन मूव इनसाइड. एंड ऑस्मोसिस मीन्स सॉल्यूशन मूव इनसाइड, और एक्स ऑस्मोसिस मीन्स सॉल्यूशन कम्स आउट. सॉल्यूशन कम्स आउट. यस बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन solution divide into 3 कैटेगरी. 3 पार्ट में डिवाइड किया है कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे. अब आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बेटा सपोज 2 बीकर हैं, ठीक है, इनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है. इसमें मैंने 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाला है, ठीक है. हियर आई पुट 10 ड्रॉप ऑफ इंक. इसका मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? इस वाले में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कि इस वाले में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? दिस वन. तो दैट इज़ नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल और दिया जाता है. जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, ठीक है, मैंने 2 ग्लास लिया है, इसमें नॉर्मल वाटर लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ लेमन स्क्वीज़ किया है, हाफ लेमन, ओके, एंड हियर आई ट्राई टू स्क्वीज फुल लेमन. तो विच कंसंट्रेशन इज मोर, A1 और B1? B1 कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, ओके, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. इसी तरीके से अपन एक एग्जाम्पल मिल्क और वाटर का ले लेते हैं. मिल्क और वाटर के एग्जाम्पल में सपोज मैंने एक मग में 1 ड्रॉप ऑफ मिल्क डाला है और दूसरे उसमें मैंने 10 ड्रॉप ऑफ मिल्क डाला है. तो मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ हुई? 10 ड्रॉप वाले में, वहाँ कम हो गई. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन. 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर हियर: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. इसके अंदर हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है कि वाटर एंटर इनटू एलिमेंट, मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है.
वाटर बाहर ज़्यादा है और रेजिन में कम है. रेजिन समझते हो, किशमिश. हाइपोटोनिक में कैसे लिखोगे? आउटसाइड कंसंट्रेशन इज मोर इन कंपैरेटिव टू सेल. आउटसाइड कंसंट्रेशन कम है और रेजिन का ज़्यादा है. सॉरी, बाहर आउटसाइड वाटर लेवल ज़्यादा है और रेजिन का कम है. तो बेटा क्या होगा, हम अच्छे से जानते हैं, ये सिकुड़ी सी पड़ी हुई है बेचारी और पानी बाहर है, तो वाटर एंटर कर जाएगा इसके अंदर. जैसे ही वाटर एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगी? स्वेल अप. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंड ऑस्मोसिस. आई विल एक्सप्लेन अगेन दिस थिंग हियर. जस्ट इन हाइपोटोनिक कंडीशन वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड मोर, सेल में कम है या रेजिन में कम है. देन व्हाट हैपन? वाटर एंटर इनसाइड. हाँ बेटा, हियर आई टोल्ड यू द आउटसाइड कंसंट्रेशन इज मोर इन कंपेरेटिव टू सेल एंड रेजिन. तो वाटर एंटर हो जाएगा. वाटर एंटर हो जाएगा तो सेल स्वेलअप हो जाएगी, पूरी फूल जाएगी. दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस दैट यू नॉर्मली ऑब्जर्व इन योर एलिमेंट. जब आपकी मम्मा आपको बादाम खाने के लिए देती होगी भीगे हुए, सो दैट प्रोसेस वी हैव सीन हियर. Now the next one, that is isotonic. Isotonic means both concentration is same. Both concentration is same. Means बाहर की भी concentration और water की भी concentration कैसी है? Same है. तो no net movement. उसमें कोई movement नहीं होगा. Come to the last one, that is hypertonic. इसके अंदर क्या होता है बेटा? water की concentration कम है, less. water concentration less. और कोई भी रेजिन की या सेल की कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा है. अब बेटा ज़्यादा है, मैंने अभी बोला था वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो सारा पानी इसमें से निकल के कहाँ आ जाएगा? इसमें चलो बाहर निकल जाएगा. और सेल कैसी हो जाएगी? जो बेचारी फूली हुई होगी वो ऐसी से श्रिंक करी हुई हो जाएगी. इस श्रिंक करने में जो वाटर है वो बाहर जा रहा है ना बेटा, बाहर की तरफ वाटर मूव कर रहा है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस. दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस. और जब ये सेल मेम्ब्रेन अपना पानी रिलीज कर देती है, सो दैट वन फिनोमेना इज ऑल्सो देयर, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो साइटोप्लाज्म अपनी जगह छोड़ देगा और बीच में आ जाएगा. ठीक है, आपने एजेड लोगों में देखा होगा, पुराने लोग जो हेल्दी बुढ़े हो जाते हैं उनकी स्किन श्रिंक हो जाती है, उनकी बॉडी में से वाटर का लेवल आउट हो जाता है. इसी तरीके से वापस बता रही हूँ, हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होता है? जिसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर कम है और किसी भी सेल का ज़्यादा है. जब सेल का ज़्यादा है तो सेल में से वाटर निकल जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगी. सेल श्रिंक हो जाएगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन जो अपनी सेल वॉल से छोड़ देता है.